Good morning, students. Welcome back to your online classes. I'm your science educator, Kirti Sakla, and today we're going to start up with our second chapter of NCERT textbook. Okay, हम next chapter start करने वाले हैं, which is your second chapter, and your chapter name is Microorganisms, Friend and Foe. Okay, so friend का मतलब you all know, friend मतलब दोस्त and foe means दुश्मन. So microorganisms, कुछ ऐसे microorganisms होते हैं जो हमारे friends होते हैं, and there are few microorganisms which are like they are enemies to us. Yes, so we're going to discuss कौन से microorganisms हैं जो हमारे friend हैं, and which are the microorganisms which are not good for our health. Okay, so before discussing friend and foe, we will first take a brief introduction about what basically the microorganism is. Microorganism होते क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. Then friends and foe, कौन से हमारे friendly हैं, which all microorganism are good for our health and which are not. ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Clear? Okay, now let's take a look at what exactly we're going to study in this chapter. Okay, we're going to talk about microorganisms. Microorganisms होते क्या हैं? We'll talk about that. कितने तरीके के microorganisms हैं? Different type of microorganisms के बारे में हम पढ़ेंगे. Where do microorganisms live? कहाँ रहते हैं microorganism? इसके बारे में हम पढ़ेंगे. And we will interconnect microorganism and us, how we both are interconnected. We'll discuss about that. Friendly microorganism, as I have said, which all microorganisms are good for our health, we're going to discuss that. Then commercial use of microorganism, medicinal use of microorganism, harmful microorganism, food preservation, and nitrogen fixation. So in this chapter, all these points we will going to cover. So let's begin with a brief introduction about microorganisms. अगर हमें आगे के contents carefully पढ़ने हैं कि different type of microorganisms कहाँ रहते हैं. We are continuously talking about microorganisms, but basically microorganisms होते क्या हैं? We need to know this first. So let's begin. Okay, tell me one thing. जब आप अपने hands किसी surface hand से किसी surface को touch करते हो, आप किसी चीज को छूते हो, तो क्या आपके हाथ absolutely clean रहते हैं? आपने observe किया है, कुछ दिखता है आपको हाथ पे, अपनी fingers पे? No ना. But do you feel your hands are absolutely clean? अगर आप अपने face को wipe कर रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो तो you're touching something, तो do you feel आपके hands एकदम clean हैं? और यू टेक अभी रिसेंटली जो अभी ये तो चल रहा है कोरोना वायरस, यू टेक दिस एज एन एग्जांपल. अभी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि वेन एवर यू टच एनीथिंग और वेन एवर यू टच समथिंग और यू गो समवेयर आउट, ऑलवेज सैनिटाइज योर हैंड और वॉश योर हैंड. क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जब आप किसी सरफेस को टच करते हो, there are microorganism which get stick to your hands. ठीक है, फिर आप जब उसको अपने फेस पे लगाते हो या आप किसी भी तरीके से आप उसको टच करते हो अपने नोज पे या कहीं भी, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं. सो इट इज एडवाइज कि आपको अपने हाथ सैनिटाइज करते रहना चाहिए. ओके, now take another example. Can you see the second image, bread का? है ना, you can see these green spots. Yes, what are these? Obviously you will say, ma'am, this is microorganism, but we are able to see it. Okay, definitely it's correct कि आप उसका color देख सकते हो कि या ये bread खराब हो गई है, there may be some microorganism की कोई ना कोई तरीके की growth हुई है, and this bread is not suitable for eating. Yes, तो आप उसको क्या देख के बता सकते हो
कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप क्या है, किस तरीके का दिखता है, सर्कुलर है या रॉड शेप है, ट्रायंगुलर है, नहीं बता सकते हो ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम हमारी नेकेड खाली आंखों से नहीं देख सकते। ओके, सो एज टू विजुअलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए व्हाट वी यूज चिल्ड्रन, वी यूज माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई इट्स शेप, वी कैन आइडेंटिफाई कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यस, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए वी यूज माइक्रोस्कोप। एंड फ्रॉम हियर ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आती है। नाउ आई होप यू ऑल नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। These are the organisms which are not visible by naked eye. ये वो organisms हैं जिनको हम हमारी खाली आंखों से नहीं देख सकते and are only visible with the help of microscope. ठीक है, और किसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, ठीक है, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Okay, coming on to the next, that is classification of microorganisms. क्या मतलब है कि हमने microorganisms को कितने तरीके से क्लासिफाई किया है। So basically we have divided microorganism in four major categories, या we have classified into four major group. The first one is bacteria, another is fungi, protozoa, and the fourth one is algae. Okay, so ये चार ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इफ वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कई तरीके की शेप होती है। वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, राउंड शेप के भी हो सकते हैं, रॉड शेप के भी हो सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। फंजाई, एज यू कैन सी इन द इमेज, एक स्टॉक, एक स्ट्रेट डंडे जैसा कुछ होता है एंड उसके ऊपर समथिंग स्पोर्स एंड ऑल। ठीक है, ये फंजाई होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो हैव यू हर्ड अबाउट अमीबा, AMOEBA, अमीबा, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, बेसिकली वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसे उनकी जरूरत होती है उस हिसाब से वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट एल्गी, तो आई होप यू ऑल नो एल्गी होता क्या है। समवेयर अपने कभी पॉन्ड पे या लेक पे हैव यू सीन कि पूरा पॉन्ड ग्रीन कलर से कवर हो जाता है, तो दैट एग्जैक्टली इज द एल्गी। ठीक है, वो एल्गी होता है। ओके, so these are the four major groups of microorganism. Which are they? Bacteria, fungi, protozoa, algae. Okay, coming on to the next, that is viruses. Now the question will arise in your mind that ma'am, kya virus is not the microorganism? Yes, exactly. Viruses are also the microorganism. Yes, coronavirus, क्या है ये? Microorganism है. You cannot see with your naked eye, but they are slightly different from other microorganism. Okay, जो दूसरे microorganisms थे, जो बैक्टीरिया है, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये क्या है? They can live outside the host cell, के बाहर भी रह सकते हैं, and they can live in the host organism also. But viruses are थोड़े से different from other microorganism. क्या होते हैं ये? देखिए, viruses are different from other microorganism. They are only active and alive
when they are inside the cell of a host organism. What it mean to say is कि जब वायरस होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है, किसी भी बॉडी के बाहर होता है, तो वो डेडली फॉर्म में होता है. ठीक है, इट इज नॉट इन एक्टिव मोड, or I can say it is not alive. ठीक है, but as soon as it enters the host organism, जैसे ही किसी organism के अंदर जाएगा, host organism के अंदर, it become active और it become alive और वो आपको बीमार करता है. Have you heard about viral? आप कहते हो मम इस अभी मुझे वायरल फीवर हो गया था and all. तो वायरल फीवर is basically what? कि कोई तरीके का वायरस it has entered into your body and it has became active, it has became alive, जिसकी वजह से आप बीमार हो गए. ठीक है, सो वायरसेस होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर तो इनएक्टिव रहते हैं, दे आर नॉट इन एक्टिव मोड, और जैसे ही किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं दे बिकम अलाइव, वो जिंदा हो जाते हैं. वेरएज जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर भी अलाइव रहते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं उस कंडीशन में भी दे रिमेन अलाइव. ठीक है, दैट इज व्हाई वायरसेस आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम other microorganism. Clear? Okay. Now we all know what are microorganisms. Yes, microorganisms होते क्या है हमें सबको पता है. We have also classified or we have categorized the microorganism into different group. Now the question arises that where do these microorganisms actually live? So the answer to this question is in all type of environment. अगर एक phrase में answer देना हो तो what you will say is that microorganisms can live in all type of environment, whether it is a hot जलता हुआ weather or it is a ice cold weather, hot spring, किसी animal की body पे, plant पे, air में, कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं, व्हाई डू वी डू सो? आप कहोगे हम फ्रिज में खाना रखते हैं हमारा खाना खराब नहीं होता है. सो दिस मिथ, अगर आपको ये मिथ है कि फ्रिज में खाना रखने से खाना खराब नहीं होता है, सो दिस इज रॉन्ग. फ्रिज में खाना रखने से खाना खराब होता है बट उसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, जो रेप्लिकेट करने का जो टाइम होता है वो स्लो डाउन हो जाता है. जो चीज आपकी 2 दिन में बाहर रखने से खराब हो रही थी वो फ्रिज में रखने से मान लो 5 दिन, 6 डेज या 7th डे तो डेफिनेटली खराब हो जाएगी. दैट डजंट मीन कि आपने अगर कोई फ्रिज में चीज रख ली तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली है, पर ठंडे में रखने की वजह से क्या होता है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रखने से कोई चीज खराब नहीं होती, जस्ट इज यू आर इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है स्टूडेंट्स, दे कैन लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिल सकते हैं. ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या है? इफ यू गो थ्रू द डेफिनेशन अगेन, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई. ठीक है, सो to see them what we use microscope. Then we have classified the microorganisms in 4 different groups, that is bacteria, fungi, protozoa and algae. उसके बाद हमने बात की थी वायरसेस की. वायरसेस क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एक्टिव मोड में रहता है बट जब तक वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में होंगे या फिर वो डेडली फॉर्म में होंगे. दैट इज व्हाई वायरसेस को हमने क्या कहा? दे आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, उसके बाद हमने बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म
हर एक तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन नेक्स्ट क्लास विल गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, हाउ वी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी ह्यूमन बींग्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन keep revising your chapter, read till here from your textbook. Okay, if you face any problem, ask me. Thank you.